أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن મારું નામ એમ એચ મલિક છે. હું નિવૃત્ત આચાર્ય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રિન્સિપાલ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતમાંથી નિવૃત્ત થયેલો છું અને 2001થી કેનેડામાં રહું છું. આપણે સ્કાયલાર્ક હાયર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ 2017થી કાર્યરત કરેલું છે. આ રજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ છે. ઇન્કમ ટેક્સ અને પીટીજી મુજબ રજિસ્ટર થયેલું છે. હવે 2017થી જ્યારે સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે અમારે 40 વિદ્યાર્થીઓને ફક્ત શરૂઆત કરી હતી કે 8 લાખ રૂપિયાથી શરૂઆત કરી હતી. આજની તારીખે 9 વર્ષ પછી એટલે 2025માં 25-26 માટે વિદ્યાર્થીઓ 606 વિદ્યાર્થીઓને 1 કરોડ 15 લાખની સહાય આપીશું. આ વિદ્યાર્થીઓને જકાત ફંડમાંથી લીલા ફંડમાંથી સંસ્થા દ્વારા 12મું ધોરણ પાસ થયા પછી મેડિકલ એન્જિનિયરિંગ વ્યવસાયમાં કે ચાર્ટર એકાઉન્ટના વ્યવસાયમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને આપીએ છીએ. એટલે આ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આ વર્ષે અમારે 606 છે અને 1 કરોડ 15 લાખ રૂપિયા જેટલી થશે. અમારી સંસ્થામાં અમારા પ્રમુખ સાહેબ રજાકભાઈ મેમણ છે, જેઓ પણ અમેરિકન સિટીઝન છે, ઉદ્યોગપતિ છે અને એમનું ઓળખાણ પોતે આપશે. મારું નામ અબ્દુલ રઝાક મેમન, હું એન્જિનિયર છું અને મારા સનની સાથે અત્યારે હું બિઝનેસમાં જોડાયેલો છું. ત્યારે મારા પૂરે ઓરિજિનલ બિઝનેસમાંથી હું રિટાયર થઈ ગયો છું, જે અમે મશીનરી બધી બનાવતા હતા. હવે અમારી આ જે સંસ્થા છે, સંસ્થાની અંદર જે સાહેબે હમણાં કહ્યું એ પ્રમાણે અમે બધાને આવી રીતે મદદ કરીએ છીએ. એમાં અમે 2 ભાગ કરેલા છે. એક અમે લીલા પૈસા અમે ભેગા કરેલા છે, થોડા ઘણા અમારી પાસે આવ્યા છે, લગભગ 25 લાખ રૂપિયા જેવા, અને બીજા બધા અમારી પાસે જકાતના હોય છે. લીલા પૈસામાંથી અમે લોન અમે એ પૈસા આપીએ છીએ કે જે જકાતના મુસ્તક નથી એમને, અને એ પૈસા અમે લોન પેસ્ટે આપીએ છીએ. કારણ કે લીલા પૈસા છે એટલે આપણે લોન તરીકે આપી શકીએ એમને. એટલે લોન અમે રીપેમેન્ટ કરે એ રીતે અમે એમના ચેક ને બધું લઈ અને એ રીતે કરીએ છીએ. અને અમને એનું સારું મળ્યું પણ છે. 2 વર્ષથી ચાલુ કર્યા છે અને એની અંદરથી અમને પાછા પૈસા પણ આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે ઇન્શાલ્લાહ. ના, ફક્ત કોલેજમાં ભણતા જે છોકરાઓ હોય, અમે ફક્ત કોલેજના છોકરાઓને જ મહેનત કરીએ છીએ. અને એ છોકરાઓ જો જકાતના મુસ્તક ના હોય અને લોઅર મિડલ ક્લાસના હોય, લોય પણ પૈસા ફી પણ ના ભરી શકતા હોય અને જકાત પણ ના લઈ શકતા હોય, તો અમારી પાસે 25 લાખ રૂપિયા જેવું અમારી પાસે ફંડ આ લીલાનું પણ આવેલું છે. તો એ લીલા ફંડમાંથી અમે એમને લોન સ્કોલરશીપ આપીએ છીએ. અને જે પછી 2 વર્ષ પછી 3 વર્ષ પછી અમને હપ્તામાં 10,000, 25,000, 5,000 જે રીતનું એમની પેલી હોય એ પ્રમાણે અમને હપ્તાની અંદર લોકો પાછા આપે છે. કેવી વિચાર આવે તમને પ્રશંસા? હા, બીજું હવે આ જે વસ્તુ કેવી છે કે જકાતના મુસ્તક છોકરાઓ તો અમને જકાતના મુસ્તક તો મળી જાય છે, પણ જે મિડલ ક્લાસનો માણસ છે અત્યારે ફીસ બધી બહુ ઊંચી થઈ ગઈ છે અને જે 50,000 રૂપિયા 60,000 રૂપિયા કમાતા માણસને એટલી બધી ઊંચી ફી ભરવા માટે તકલીફ પડે છે. હવે જ્યારે બેંકમાં કે એમાં જાય છે તો ત્યાં એમને ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડે છે. તો અમે અમારી પાસે એટલા આવી શકે છે, અમે કોશિશ કરીએ છીએ તો અમે વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ આપણી કોમને મદદ કરી શકીએ એ ઇન્ટેન્શનથી આપણે આ લોન સ્કોલરશીપ કરી છે. અને એને માટે અમને અમારા દાતાઓ પણ મળ્યા છે કે જેણે અમને લીલા ફંડ આપ્યું છે. આજ સુધી અમે આપણે 1500 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને 3 કરોડ 20 લાખ ઉપરની સહાયતા કરી ચૂક્યા છીએ. બીજું સાહેબ, અમારા પ્રમુખ સાહેબ દ્વારા બી કોમ્પ્યુટરના ક્લાસ ચલાવવામાં આવે છે અને કોમ્પ્યુટરના ક્લાસની અંદર પણ ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને
ઓછી ફીમાં કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ આપવામાં આવે છે અને આવા બીજા અન્ય સેન્ટરો ઇલ્મ ફાઉન્ડેશન સાહેબનું છે, એમના દ્વારા આપણે અમદાવાદમાં 20 સેન્ટરો ચાલે છે જે મસ્જિદ મદ્રેસાઓમાં ચાલે છે. 2000 વિદ્યાર્થીઓ પણ એમાં કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ લે છે અને અભ્યાસ કરે છે. અમે જાહેરાત આપીએ છીએ, પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ અને એ પ્રમાણે ફોર્મ ભરવાનું હોય છે અને ફોર્મ ભરીને અમે સોર્ટિંગ કરીને વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાત પ્રમાણે એમની રકમ મંજૂર કરીએ છીએ. ગુજરાત પ્રસિદ્ધમાં અને વોટ્સઅપ પર જયારે 12માનું રિઝલ્ટ આવ્યા પછી મદદ માટે તો સવાલ નથી, અમે તો જકાત પણ ઉઘરાઈએ છીએ અને અમને આપે એટલે સવાલ લે છે. અમે જે જાહેરાત આપીએ છીએ ન્યૂઝપેપરમાં અને વોટ્સઅપમાં, એની અંદર અમે વિદ્યાર્થીઓ માટે પહેલા લખીએ છીએ કે જે બધા વિદ્યાર્થીઓ હોય એમને મદદની જરૂર હોય એ અમારી પાસે કોન્ટેક્ટ કરે, અને સાથે સાથે અમે લખીએ પણ છીએ કે ભાઈ સખીદાતાઓ અમને આ બાબતની અંદર જકાતની અંદર મદદ પણ કરે. અમારા પોતાના ગ્રુપમાંથી અમે પોતે જાતે પણ મહેનત કરી અને અમે અમારી રીતે પછી પૈસા ઉઘરાવીએ છીએ. અલ્લાહની મહેરબાનીથી અમારી પાસે ફંડ ધીમે ધીમે વધતું જ જાય છે અને કામ ચાલતું રહે છે. My name is Mushira Sheikh and I had done BCA from Baba Saheb Ambedkar Open University with the help of Ilm Foundation support, Skylark Education Trust and Shaheen Knowledge Center. I had completed my BCA from Open University, Ambedkar University, और जो डिस्टेंस और ओपन लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर दो स्टूडेंट जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते और या फीस इश्यू होता है फाइनेंशियल इश्यूज़ में, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए स्काईलार्क और शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करता है बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए बाय नियर फ्रॉम होम, जहाँ पे आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पर लर्न करना और सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना है. हम सब ने अभी रिसेंट में ही कंप्लीट किया. वी आर द फर्स्ट बैच जिन्होंने 3 साल पहले ये वाला कोर्स स्टार्ट किया था और कम्प्लीटली वी हैड डन विथ ऑल दी रिजल्ट्स एंड मार्क्स सब कुछ. और उसके अलावा हमने काफ़ी सारे कोर्सेज किए इल्म फाउंडेशन के, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. एंड नाउ वी ऑल आर ग्रेजुएटेड विद द इंटर्नशिप और हम साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग प्लेसमेंट भी हो चुके हैं स्ट्रीबो और इल्म फाउंडेशन के अलग अलग जो ब्रांचेज है उसके अंदर. एज आई एम डूइंग नाउ BA इन स्ट्रीबो बिजनेस एनालिसिस, और मेरे जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी डेवलपमेंट में और क्वालिटी एनालिसिस में, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्किंग है. आगे ये कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके पास करियर ऑप्शन नहीं है, आपके पास लिमिटेशन है. आपको सिर्फ पढ़ना है तो ऑप्शंस आपके सामने हैं. हमारे पास इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, आज का ज़माना बहुत ही आगे है, हम हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से नहीं है. सो आप में से अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे पढ़ना है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली फाइनेंस, तो देयर इज़ मैनी मोर ऑप्शंस. और स्पेशली ऐसे एजुकेशन ट्रस्ट देखो जो आपको पढ़ने के लिए सपोर्ट करे. आपको जॉब मिलेगी, आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा. स्पेशली एज मी अल्सना मिसबा, वी ऑल आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम जॉब फ्रॉम स्टार्टिंग. इंटर्नशिप भी घर से ही की, अभी जॉब भी कर रहे हैं, वो भी घर से कर रहे हैं. तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है. एज मी कि मैं जब BCA स्टार्ट कर रही थी तो मेरा यही कंसर्न था कि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकती. एज आई एम अ डॉटर ऑफ मौलाना जो एक आलिम है और उनके लिए पॉसिबल नहीं कि वो मुझे डेली कॉलेज छोड़ने भेजे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये एक ऑप्शन था जहाँ से मैंने मेरी डिग्री कंप्लीट की, अपना पैशन और करियर स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे. मेरा नाम है शेख मोहम्मद नोमान अल्ताफ़ हुसैन और मैं शाहपुर से हूँ. और मैं हाल ही में अभी इस्टीबो के अंदर मैं एज ए टेक्निकल लीड और टीम लीड के काम कर रहा हूँ. जब मैंने BCA यहाँ पे इस्टीबो के अंदर ज्वाइन किया था तब हमारी स्काईलार्क के अंदर एकेडमी के अंदर इल्म फाउंडेशन के मातहत BCA का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. तो उसके अंदर मैंने भी एनरोल किया था. मैं 12th के बाद मैंने कुछ कोर्स किए, कोर्स करने के बाद मैं यहाँ पर आया. बट वो कोर्स क्या है कि हमें कहीं पे इतने डीपली प्रोवाइड नहीं होते जो हमें यहाँ पे इल्म फाउंडेशन के थ्रू, हमारे स्काईलार्क एकेडमी है और उनके थ्रू हमें प्रोवाइड होते हैं. वो कैसे प्रोवाइड होते हैं कि जो भी हमारे पास वर्किंग एम्प्लॉयज़ है वो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करना है, किस तरीके से उसके अंदर हमें उसको डिप्लॉयमेंट करना है, उसको टेस्टिंग किस तरीके से करनी है. तो वो सारे हमें लाइव एग्जाम्पल मिलते हैं तो हम उसके अंदर से जल्दी कैचअप कर सकते हैं. तो इसी तरीके से हमारा BCA भी हमने यहाँ से कंप्लीट किया. तो BCA के अंदर हमें पूरा नॉलेज मिला
के नॉलेज ऐसा मिला कि हम एग्ज़ाम देने जब जाते थे तो हमें नॉलेज होता था कि हमने वर्किंग भी किया, हम वर्किंग भी है, वर्किंग एम्प्लॉय भी है एज ए स्टीबो के अंदर, और यहाँ पे हम इंटर्नशिप के साथ साथ हम हमारी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें बहुत बेनिफिट्स हुए। और इसी तरीके से आगे हम पढ़ाई करेंगे। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी नेक्स्ट बैच है, जो भी नई बैच है, जो 12th के बाद करना चाहते हैं कि भाई हमें काम भी करना है, हमें कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करना है, हमें साथ साथ में AI सीखना है, AI ML सीखना है, हमें कुछ आगे बढ़ना है। चैट GPT के अंदर हम बॉट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, हम उसको हैंडल किस तरीके से करेंगे, हम उसको टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे, उसको मैनेज किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाई जाती है। और उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी होगी, जो कि हम बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से हमने की है, कंप्लीट की है। और यही मैसेज देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो भी है आपका 12th के बाद, आप कोई भी अपनी नज़दीकी एकेडमी, हमारे फाउंडेशन के मातहत 23 एकेडमिक सभी हाल रनिंग है, जहाँ पे आप अपने एरिया के हिसाब से आप फाइंड करके वहाँ पे जाके आप एनरोल हो सकते हो और अपना BCA प्रोग्राम भी कंप्लीट कर सकते हो, आप ग्रेजुएट भी हो सकते हो, और साथ साथ में अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो और अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टीबो। एवरीवन, मैं पहले थैंक यू कहना चाहूँगी उस्मान सर को और अपने हमीद सर को और इन फाउंडेशन को, क्योंकि उन्होंने हमको सपोर्ट किया और अभी हम यहाँ तक है। पहले तो स्टार्टिंग में हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर किया था और उसके बाद इन्होंने हम लोग को इंकरेज किया कि आप HTML वेब डिज़ाइन वगैरह करो। पहले हम लोग 10th किया हुआ था, फिर उन्होंने हमको बोला कि आप यहाँ से और भी अच्छे कोर्सेज कर सकते हो। तो फिर हम लोग ने यहाँ पर से जो अपना बाऊ का कोर्स हमारा जो चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर से, जहाँ से हम लोग ने BCA करा डिस्टेंस लर्निंग से। मैं गर्ल्स को यही बोलना चाहूँगी कि हमारा मैं जहाँ से रहती हूँ तो उसमें हमारा ऐसा कल्चर है कि गर्ल्स ना एक जगह से दूसरी जगह बाहर नहीं जा सकती है, मतलब। और इस तरह हमारे पेरेंट्स मतलब ये अलाउ नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब डिस्टेंस लर्निंग का ही फिर हम लोग ने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि इस वजह से हम लोग पढ़ पाए। और एक्चुअली ऐसा है कि मेरी मम्मी नहीं है और मेरे फादर है, तो उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, जिसमें तो हम लोग को कितने लोगों ने मना किया था कि इनको नहीं कराना चाहिए, गर्ल्स को नहीं करना चाहिए, पर पापा ने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक कि तो वो हमको छोड़ने भी जाते थे, लेने भी जाते थे वहाँ, मतलब कि हमारे लिए वेट करते थे। तो थैंक यू मेरे फादर को मैं बोलना चाहूँगी। और पढ़ाई के साथ हमको घर का काम भी करना होता था, तो फिर हम लोग 7 बजे सुबह में रेगुलर उठ जाते थे, फिर हमको 10 बजे एकेडमी जाना रहता था। तो एकेडमी पर पहले तो हमारा लर्निंग ही था, फिर और जो भी हमारे को ना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है सर ने, मतलब स्कॉलरशिप दी है, क्योंकि हम लोग 2 सिस्टर है और कमाने वाले पापा ही थे, तो मतलब सर ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया। और फिर इस तरीके से हम लोग ने पढ़ाई करी। 10 बजे हम लोग जाते थे और फिर हम लोग 2 बजे आ जाते थे वहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग सर ने हम लोग को डेवलपर एज अ डेवलपर अभी हम लोग वर्क करते हैं इन फाउंडेशन के। माय नेम इज़ असना रंगरेज। और अभी जैसे कि मिसबा ने कहा कि हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले ना काउंसलर थे, हम लोग मतलब अकेडमी पर रेगुलर बेस आना रहता था और साथ साथ हम लोग स्टडी भी करते थे। और पहले तो ऐसा था कि मतलब कि मेरे एक्चुअली BCom करा हुआ था, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी फील्ड चेंज करूं, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर अकेडमी पे मैंने एडमिशन लिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो फिर मैंने उस चीज़ में एडमिशन लिया। फिर हमारे जो काउंसलर थे, जैसे कि आज मैं काउंसलर हूँ, और हमारे आफरीन मैम थे, वो हमको इतना सपोर्ट करते थे कि HTML के कोर्स करो, तो वो चीज़ में इंटरेस्ट आया। फिर हमको पता चला कि यहाँ पर एक प्रोग्राम है BCA के रिगार्डिंग, फिर हमने वो अटेंड करा। उसके बाद फिर हम लोगों को इंटरेस्ट आया कि हम BCA कर सकते हैं, फिर हम लोग ने BCA स्टार्ट करा। फिर साथों साथ में सर ने हमको जॉब भी दी कि आप ये कर सकते हो इसके साथ में, तो फिर हमको और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग से मिला। उसके बाद हम लोगों ने BA और डेवलपर वर्क में हमारे को ऐड कर दिया। देखो यहाँ पर कैसा है कि हम लोग है ना, हमारी यूनिवर्सिटी से इतना सम्मान नहीं मिला जितना हमारे को ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पर मिला है, और नॉलेज इन्वायरमेंट इस तरीके से, मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से। ये मतलब एक फ़ख्र की बात है कि हम लोगों को साथ में पेरेंट्स हमको इस तरीके से देख सकते हैं इस मुकाम पे, और ज़्यादातर ये मतलब ये पोजीशन देखना बहुत मुश्किल की बात है, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा इनने हमारे लिए इस तरीके से सम्मान करा। और अभी लास्ट ईयर मैंने BCA बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, और अभी मैं एज ए स्टीबो में QA सॉफ्टवेयर टेस्टर वर्क कर रहा हूँ। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मुझे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग वहाँ से मैंने किया हुआ है, जो आप लोग भी कर सकते हो। इफ़ आपको कॉलेज नहीं जाना हो तो डिस्टेंस लर्निंग ओपन यूनिवर्सिटी से आप
BCA या फिर कोई और भी प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हो। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होगा, सेल्फ लर्निंग करनी होती है, खुद से सेल्फ लर्निंग कर सकते हो आप। और इफ़ आपको कहीं जॉब करना है या फिर टीचिंग वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप घर बैठे आपकी डिग्री भी आपको मिल जाएगी। आपको अगर फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं हो तो आप कहीं जॉब भी कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो, तो ये आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। देश और समाज के लिए आप ये करना चाहेंगे कि मैंने अभी 1.5 ईयर मैंने टीचिंग भी किया है, एकेडमीज भी रन होती है यहाँ पे 23 एकेडमीज करंटली अभी अहमदाबाद में रन है। तो वहाँ पे हम कम फीस में और बच्चों को ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते, महंगे महंगे कोर्सेज नहीं कर सकते, तो हम लो बजट में हम अच्छे से अच्छा उनको कोर्स प्रोवाइड करते हैं। कोर्स के नाम जैसे हमारे यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर का कोर्स चलता है, जो बाहर अभी हम देखने जाएंगे 5 से 10 हज़ार रुपये का एक कोर्स है, लेकिन हम पर मंथ 300 रुपीज़ का ये कोर्स चलाते हैं यहाँ पे अहमदाबाद में, ऑल ओवर अहमदाबाद में 900 में आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। जो बाहर हम देखने जाए तो 5 से 10 हज़ार रुपये का कोर्स है ये। डिजिटल मार्केटिंग है, वेब है, HTML CSS है, AI लर्निंग है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। सोशल मीडिया पे हमारा इल्म फाउंडेशन के नाम से वेबसाइट है, साइन फाउंडेशन है हमारा दानिमरा 4 रास्ता पे, स्काइलर के जुआपुरे में, ऐसे डिफरेंट 23 एकेडमी। इसके बारे में जो आज गुजरात की एक ऐसी तंजीम है कि जो हमारे भविष्य को मजबूत करने की उनकी सोच है। जो हमारी पीढ़ी मजबूत होगी तो हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी, हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। तो जो आज स्काईलैब की जो सोच है अब्दुल रज़ाक मेमन साहब की, तो उसके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। और ये एक जो सोच है जो कौम को मजबूत करने की, वो एक बहुत बड़ी सोच है जिससे हमारा भविष्य मजबूत होगा। और मैं आपके द्वारा जो मुसलमान मजबूत हैं उनको भी इसके अंदर ज्वाइन करके और कौम को मजबूत करने का और देश को मजबूत करने के लिए, जब तक फंड नहीं होगा वहाँ तक मजबूत कुछ नहीं होता। तो हम एक ऐसी तंजीम के साथ जुड़े हुए कि वो बहुत सीनियर सिटीजन की तंजीम है और बहुत मजबूत सोच और इरादे के साथ है, और जिससे हमारी कम्युनिटी बहुत मजबूत होगी। और बच्चे आज करीबन ये समझ के चले कि 1,15-20 लाख रुपए के चेक आज पूरी कम्युनिटी के बच्चों को तकसीम हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। ये एक ज़िंदगी के अंदर एक बच्चों का सहारा है और जिससे एक मोटिवेट होते बच्चे, और वो प्रोग्राम था। तो आज मेरी और आपकी लाइफ में हमारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों को भविष्य के लिए जो काम कर रहा है उसको पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और एक मजबूत थंब जुआपुरा से निकले उसकी सभी को कोशिश करनी चाहिए इंशाअल्लाह।